Okay, Rajit, we have discussed VBT and ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਟਾਈਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਸਾਈਨ ਦੀਆਂ ਲੋਬਸ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸੇਮ ਸਾਈਨ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਦੋਨੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਹੈ। ਆਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਨ ਦੀਆਂ ਲੋਬਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਪ ਨੇ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡ ਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨੋ ਬੌਂਡ ਫੋਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਫੋਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗਸ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬੌਂਡ ਬਣਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਬੌਂਡ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੰਸੈਪਟ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ VBT ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੌਂਡ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਿਗਮਾ ਅਤੇ ਪਾਈ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਪੜ੍ਹੀਆਂ SS, SP ਅਤੇ PP। PP ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਈ ਅਤੇ ਸਿਗਮਾ ਦੋਨੋਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਆਹ ਬੌਂਡਸ ਬਣਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, SS ਦੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, SP ਦੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, PP ਦੀ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ VBT ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਛ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਕੀ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ VBT ਦੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ। VBT ਦੀਆਂ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ CH4 ਦੀ। ਕਿਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? CH4 ਦੀ। ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗਿਵਨ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, CH4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਕਾਰਬਨ। ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ 2s2 2p2। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2 1 ਅਤੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੂਇਸ ਡਾਟ ਸਟਰਕਚਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ, ਲੂਇਸ ਡਾਟ ਸਟਰਕਚਰ, ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿਗਮਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੌਂਡ ਬਣੇਗਾ, ਬੌਂਡ ਵਿਲ ਫੋਰਮ ਜਦੋਂ ਓਵਰ ਔਰਬਿਟਲਸ ਮਸਟ ਬੀ ਹਾਫ ਫਿਲਡ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ VBT ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਔਰਬਿਟਲਸ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਦੋਂ ਬੌਂਡ ਬਣੂਗਾ। ਇਹ ਸਿਗਮਾ ਜਾਂ ਪਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਔਰਬਿਟਲ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਕੋਲੇ ਵੀ ਮੀਨਸ 4 ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ 4 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੇ ਅਗਰ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਨਾ ਤਾਂ 4 ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਆ? 2। ਤਾਂ ਇਹ 4 ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 2s ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? 2p 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ 2p 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਫਰੋਮ ਲੋਅਰ ਐਨਰਜੀ ਟੂ ਹਾਇਰ ਐਨਰਜੀ ਔਰਬਿਟਲ called promotion of electrons is called promotion of electrons। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ 2p ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ S ਵਾਲਾ p 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਨਰਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ VBT ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਟਮਸ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਐਨਰਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਆ ਉਹੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਾਸਤੇ ਐਟਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਆਫਟਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਾਰਬਨ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 1 1 1 4 ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਗਏ 2s 2p। ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸਾਈਟਡ 'ਚ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਵरलैप करना है चारों हाइड्रोजन दे नाल। हाइड्रोजन पहले दा, दूसरे दा, तीसरे दा, चौथे दा। क्योंकि आपां नूं पता ओवरलैपिंग लई की होने चाहिए, अपोजिट स्पिन होणियां चाहिए। तो आ 1s, आ भी 1s 1s 1s, ये सारे हाइड्रोजन हो गए। H1 कह लो, H2 कह लो, H3 H4। इन्हें ये ओवरलैप कर लिया, इन्हें ये कर लिया, इन्हें ये 4 बॉन्ड बन गए इस तरीके नाल। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये अपने कोले जिहड़े हैगे आ 4 बॉन्ड बने सीगे, ठीक है, फस्ट, सैकेंड ते थर्ड ते फोर्थ। मान लो आ जिहड़ा हैगा ये SS ओवरलैपिंग नाल बनिया कि इहदा 1s, इहदा 2s, आ 2p ते 1s, आ भी 2p ते 1s, 2p ते 1s, सॉरी 1s ते 2p, ठीक है। तो ये की होना चाहिए, क्योंकि ओवरलैपिंग अलग अलग है, एक SS ऑर्बिटल वाली है, 3 है जिहड़ियां वो SP वालियां ने, कि इहदी बॉन्ड लेंथ अलग होवे ते इन्हां तिन्नां दी बॉन्ड लेंथ है जिहड़ी वो सेम होवे, है ना। मतलब ये बॉन्ड लेंथस अलग अलग हो सकदियां, होणियां चाहीदियां, पर जदों मैशर किया तो ये चारे बॉन्ड लेंथ की आ गई, सेम आ गई। चारों बॉन्ड दियां बॉन्ड लेंथ की आ गई अपने कोले सेम आ गई। तो पर VBT के अकॉर्डिंगली तो डिफरेंट आउणियां चाहीदियां। जदों ये VBT के अकॉर्डिंगली डिफरेंट आउणियां चाहीदियां तो ये अपने कोले की आउंदियां, बट अपने कोले की आउंदियां ये सेम आउंदियां। तो यही की है लिमिटेशन ऑफ द VBT है। इस चीज़ को ओवरकम किने किया, अगला कंसैप्ट है दैट इज़ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन ने किवें ओवरकम किया, देखो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन की हुंदी है, एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल जिहड़े ऑर्बिटल्स ऑफ एटम है, जिवें 1s हो गया, 2s, 3s, 4s, 2p, 3p, ये सारे जिहड़े आपां पढ़े हुण तक एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही पढ़े हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल की करते हैं, मिक्स करते हैं, मिक्स होके की बनाते हैं, वो नवा सैट बनाते हैं ऑर्बिटल्स का, उन्होंने कहने आपां हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो किहड़े एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करते हैं, नहीं भी किसी मर्जी नूं तुसीं मिक्स कर दो, जिन्ना स्लाइट डिफरेंस इन द एनर्जी, स्लाइट डिफरेंस इन द एनर्जी, कि उन्होंने एनर्जी च डिफरेंस बहुत थोड़ा होवे, जिवें 1s इत्थे पिया तो 2s इत्थे होऊगा, 3s इत्थे होऊगा, फिर 5s इत्थे पिया तो 5s ते 1s है जिहड़े वो नहीं कंबाइन कर सकते, क्योंकि इन्हां च एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 1s ते 2s कंबाइन कर सकते क्योंकि इन्हां च एनर्जी डिफरेंस घट है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंदे आ, किहड़े एटॉमिक ऑर्बिटल जिन्हां दा एनर्जी डिफरेंस घट होवे वो बनाउंदे की है, नवा सैट ऑफ ऑर्बिटल। नवा सैट ऑर्बिटल का किहड़ा बनाउंदे आ, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की प्रॉपर्टी की है कि इन्हां दी सेम साइज़, शेप ते एनर्जी, 3 चीज़ां सेम होंदियां। यही 3 चीज़ां इन्हां दियां डिफरेंट होंदियां। आपां नूं पता है S ऑर्बिटल सफेरिकल हुंदा, P डंबल हुंदा, D डबल डंबल हुंदा। तो अलग अलग शेप्स दे ने अपने कोले ऑर्बिटल, ये की है सेम शेप दे ने, साइज़ भी सेम हुंदा इन्हां दा, एनर्जी भी सेम हुंदी है, जिन्ने मर्जी हाइब्रिड बन जाण। एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जीज आपां नूं पता 1s की घट हुंदी है, 2s की उस तो ज़्यादा, 2p की उस तो ज़्यादा, एनर्जीज अलग अलग होंदियां। तो इन्हां दे विच अपने कोले सेम साइज़ शेप एनर्जी नहीं हुंदा, इन्हां दी अलग अलग हुंदी है एनर्जी सारी कुछ, इहदा एक ही अपने कोले सेम हुंदा है, ठीक है। जो ये सेम हुंदा तो क्योंकि सेम एनर्जी है तो ओवरलैपिंग इफेक्टिव हुंदी है, ओवरलैपिंग इफेक्टिव होके बॉन्ड्स की बनते हैं, मोर स्ट्रोंग बनते हैं दैन द एटॉमिक ऑर्बिटल। जो एटॉमिक ऑर्बिटल कोवालेंट बॉन्ड बनाता वो वीक होंदा, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता वो की होंदा, स्ट्रोंग होंदा, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल दी प्रॉपर्टीज़ इन्हां च आ जांदियां ने, ठीक है। तो इन्ना एक वधिया चीज़ बन जाती है। तो ये अपने कोले बॉन्ड की बनते हैं, स्ट्रोंग बनते हैं, ठीक है। तो ये जोड़े हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंदे आ, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की है आपदे आप नूं ओरीएंट कर लेंदे आ। ओरीएंट मीनस आपदे आप नूं स्पेस दे विच ओरीएंट कर लेंदे आ किसी पर्टिकुलर जोमैट्री च। दैट मीनस ये जिहड़ी हाइब्रिडाइजेशन है ये आपां नूं जोमैट्री प्रोडिक्ट करन च भी हैल्प करदी है, जोमैट्री भी दसदी है ये आपां नूं मॉलीक्यूल दी, ठीक है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ जिहड़े इन्हां नूं हुण जे मान लो जिवें आपां उत्थे कीता सी आह वाला सी ना, इहदे च 2s ते 2p हुण की हो जाणगे, मिक्स हो जाणगे, ये मिक्स होकर नवे ऑर्बिटल बनाउणगे, ठीक है।
तो ये की अपने कोले कि 2s है प्लस 2p तीनों मिल के की बनाउणगे 1 ते 3 3 p दे ऑर्बिटल है 1 s का ऑर्बिटल है मिक्स हो गए इन्होंने 4 नवे ऑर्बिटल बनाते इन्हों हाईब्रिड ऑर्बिटल तो यदा नाम की है हरेक ऑर्बिटल का sp3 चारां का नाम sp3 है जिहड़े मिक्स होए होणगे उन्हां दे अकॉर्डिंगली नाम होऊगा जे 1 s ते 1 p है तो नाम होऊगा sp 2 ऑर्बिटल बननगे दोवां का नाम sp होऊगा 1 s ते 2 p ऑर्बिटल है तो sp2 आऊगी ठीक है। ये अपने को जिन्ने अटोमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंदे मिक्स होंदे उन्ने ही हाईब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंदे ठीक है। जिन्ने अटोमिक ऑर्बिटल कंबाइन होणगे उन्ने ही जे 2 कंबाइन होणगे तो 2 नवे बननगे जे 3 कंबाइन होणगे तो 3 नवे बननगे जे 4 ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे तो 4 ही नवे बननगे चारां दा नाम की होगा sp3 ते इन्हां चारां दी एनर्जी की होगी सेम होगी शेप भी सेम होगी जे एनर्जी ते शेप सेम है तां करके चारे बॉन्ड भी की होणगे इक्वल होणगे तां ही CH4 दे विच चारे बॉन्ड की हुंदे इक्वल हुंदे क्योंकि उन्हां विच जिहड़ी ओवरलैपिंग हुंदी है वो sp3 नाल हुंदी है। तो जोड़े हाईब्रिड ऑर्बिटल है वो आप किमें ड्रॉ करते हैं उन्होंने शेप की होंगी है इस तरीके नाल एक लोब छोटी होंगी है एक लोब की होंगी है वड्डी होंगी है उन्होंने ठीक है। तो जे sp3 ड्रॉ करने हैं तो 4 ड्रॉ करने हैं एक sp3 हो गया दूसरा sp3 हो गया तीसरा हो गया चौथा हो गया ये चारे sp3 है ये चारे हुण हाइड्रोजन ये भी है हाइड्रोजन की ओवरलैपिंग ये भी हुण चारे sp3 है सेम ऑर्बिटल ने सेम ऑर्बिटल सेम नाल ओवरलैपिंग है जे ओवरलैपिंग सेम ऑर्बिटल्स की है तो एक्सटेंट भी ओवरलैपिंग का सेम होगा तो बॉन्ड लेंथ भी की होगी इक्वल होगी ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन है जी वो जोमैट्री भी दसदी है आपां एटॉमिक ऑर्बिटल जिन्ने कंबाइन होंगे उन्ने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं किहड़े ऑर्बिटल मिक्स होंगे जिन्हों का एनर्जी डिफरेंस घट होंदा नवा सैट बनता जिन्हों की शेप साइज एनर्जी ज़्यादा होंदी है हाइब्रिड ऑर्बिटल जिहड़े हैगे इफैक्टिव ओवरलैपिंग करते हैं तां करके इन्हां दी जिहड़ी एनर्जी जिहड़ा बॉन्ड आ वो स्ट्रोंग होंदा है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स ये सिग्मा बॉन्ड्स ही बनाते हैं ठीक है। ये जोड़े हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ वो की बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड्स ही बनाते हैं पाई बॉन्ड नहीं बनाते पाई बॉन्ड कौन बनाता है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जोड़े वो अपने को पाई बॉन्ड बनाते हैं ठीक है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दे विच सिग्मा बॉन्ड हो गया तो लोन पेयर हो गए क्योंकि हाइब्रिड जे ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइज्ड होना अटोमिक ऑर्बिटल्स ने तो वो कोई कंडीशन नहीं हैगी भी वो सिंगली ऑक्यूपाइड होना चाहिए जोड़े फुली फिल्ड होंगे वो भी हाइब्रिड हो जाते हैं हाइब्रिडाइज्ड हो जाते हैं फुली फिल्ड जोड़े वो लोन पेयर आ जाते हैं जोड़े हाफ फिल्ड होंगे एम्पटी ऑर्बिटल नहीं जा सकते हाइब्रिडाइजेशन च या तो हाफ फिल्ड जाणगे या फुली फिल्ड जाणगे फुली फिल्ड किहदे फॉर्म च चले जाते हैं लोन पेयर की फॉर्म दे विच ते हाफ फिल्ड किहदे चले जाते हैं सिग्मा बॉन्ड दे विच हाफ फिल्ड सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे हैं फुली फिल्ड लोन पेयर चल जाते हैं ये आप अगे एग्जाम्पल्स जो करांगे तो उदों देखांगे ठीक है। तो हुण अगे हैगियां ने करैक्टरिस्टिक्स ते कंडीशनस फॉर द हाइब्रिडाइजेशन वो आप देखते हैं ठीक है। देखो बुक ते ही है पहली करैक्टरिस्टिक हैगी है नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये आप कर चुके हैं कि उन्ने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते जिन्ने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे इन्हां सारिਆਂ की शेप एनर्जी सेम होंदी है मोर इफैक्टिव होंगे स्टेबल बॉन्ड बनाते हैं तो जोमैट्री दसते हैं। कंडीशनस आ गया कि बैलेंस शैल वाले ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट करते हैं ऑर्बिटल्स जिन्हों का एनर्जी डिफरेंस घट होगा वही हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट करेंगे। प्रमोशन इज़ नॉट एसेंशियल जी प्रमोशन दसी सी ना इलैक्ट्रॉन्स की वो जरूरी नहीं होंदा भी हाइब्रिडाइजेशन तो पहला करनी है वो एक मतलब जे जरूरत पैंदी है तो करनी है अदरवाइज कोई जरूरी नहीं होंदी ठीक है नैसेसरी कंडीशन नहीं है मतलब अगेन हाफ फिल्ड कल्ले नहीं पार्टिसिपेट करते फुली फिल्ड भी पार्टिसिपेट करते हैं फुली फिल्ड विल आल्सो पार्टिसिपेट टू फॉर्म द हाइब्रिडाइजेशन